नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today we will discuss on facial nerve paralysis. Facial nerve paralysis is a common problem that involves the paralysis of any structure inverted by the facial nerve. Sign and symptoms of facial nerve paralysis is characterized by facial weakness, usually only in one side of the face, with other symptoms possibly including loss of taste and hyperacusis and decreased salivation and tear secretion. Other signs may be linked to the causes of the paralysis, such as vesicle in the ears, which may occur if the facial palsy is due to uh, shingles. Acute facial pain radiated from the ear may precede the onset of other symptoms. Causes: Bell's palsy, most common cause of acute facial nerve paralysis. There is no cause of Bell's palsy, although it has been associated with herpes simplex infection. It may develop over several days and may last several months, in majority of cases recovering spontaneously. Bell's palsy Bell's palsy is often treated with corticosteroid infection. Lyme disease, an infection caused by Borrelia burgdorferi bacteria and spread by ticks, and account for about 25% of cases of facial palsy in areas where Lyme disease is common. The first sign the first sign about 80% of Lyme infection, typically 1 or 2 weeks after a tick bite, is usually an expanding rash that may be accompanied by headache, body ache, fatigue, or fever. Lyme disease is treated with antibiotic. Other infection is reactivation of herpes zoster, reaction of a herpes sorry reactivation of herpes zoster, otitis media, and trauma. In blunt trauma, the facial nerve is the most commonly injured cranial nerve. Physical trauma, especially fracture of the temporal bone, may also cause acute nerve paralysis. Tumors: a tumor compressing the facial nerve anywhere along its complex pathway can result in facial paralysis. Common culprit are facial neuroma, congenital cholesteatoma, hemangioma, acoustic uh, neuromas, parotid gland nucleoplasm, or metastasis of other tumor. Stroke: central facial palsy can be caused by lacunar infraction affecting fibers in the internal capsule going to the nucleus. Other causes: diabetes mellitus, facial paralysis, sometimes bilateral, is a common manifestation of sarcoidosis of the nervous system. Neuropsychosis, GB syndrome, an autoimmune condition of the peripheral nervous system. Mobius syndrome, underdevelopment of the seventh cranial nerve. Diagnosis: a medical history and physical examination, including a neurological examination, are needed for diagnosis. First step is to observe what part of the face do not move normally. When the person tries to smile, blink, or raise the eyebrows. If the forehead wrinkles normally, a diagnosis of central nerve palsy is made and the person should be evaluated for stroke. Otherwise, the diagnosis is peripheral facial palsy and its cause need to be identified. To be identified.
Ramsay-Hunt syndrome cause pain and small blisters on the ear on the same side of the palsy. Otitis media, trauma, and post-surgical complication may alternatively become apparent from history and physical examination. If there is a history of trauma or a tumor is suspected, a CT scan or MRI may be needed to clarify its impact. Lyme disease. History of outdoor activities is likely. Tick habit during warmer months. Recent history of rashes and whether the palsy affect both sides of the face. A serological test for Lyme disease should be performed. If the test positive, the diagnosis is Lyme disease. If no cause is found, the diagnosis is Bell's palsy. Classification. Spinal nerve paralysis may be divided into supranuclear and infranuclear lesions. In a clinical setting, other commonly used classification include intracranial and extracranial, acute, subacute, and chronic condition, supranuclear and nuclear lesions. Nuclear lesions. Central facial palsy can be caused by a lacunar infarct affecting fibrous in the internal capsule going to the muscle. The facial nucleus itself can be affected by infarct of the pontine arteries. There are corticobulbar fibers traveling in internal capsule. Infranuclear lesions refers to the majority of causes of facial palsy. Treatment is if a underlying cause has been found to the facial palsy, it should be treated. The facial palsy is caused by Lyme disease. Exceed 10%. Empiric therapy with antibiotics should be initiated without corticosteroid and revalidated upon completion of lab test to Lyme disease. All other patients should be treated with corticosteroid, and if the palsy is severe, uh, anti palsy is antiviral. Facial palsy is considered severe if the person is unable to do the affected eye completely or the unable to close the affected eye completely or the face is asymmetrical even at rest. Corticosteroid initiated within 3 days of Bell's palsy onset have been found to increase chances of recovery. In those whose blinking or disrupted by the facial palsy, frequent use of artificial tear while awake is recommended along with ointment and a patch or tapping the eyes closed when sleeping. Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अर्दित रोग। अर्दित रोग जो है मॉडर्न साइंस में अगर हम इसका लक्षणों के आधार पर देखें तो फेशियल पैरालिसिस के साथ में इसका जो है कोरिलेशन इसको कोरिलेट किया जा सकता है। कोरिलेट किया जा सकता है। अर्दित जो है यह भी एक तरह का जो है वात व्याधि की तरह ही एक प्रकार का जीर्ण रोग होता है। इसमें मुख का आधा भाग विकृत हो जाता है। आधुनिक मतानुसार फेशियल नर्व की विकृति से अर्दित रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्दित एक चिरकारी रोग है, परंतु यदि प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा की जाए तो व्याधि का जो है शमन हो जाता है। परंतु अर्दित में मुखार्ध का टेढ़ापन और वेदना होती है। आचार्य चरक ने अर्दित को मुख के आधे भाग में अथवा शरीर के आधे भाग में होने वाला रोग बताया है।
जबकि आचार्य सुश्रुत ने अर्दित को केवल मुखार्ध में होने वाला रोग बताया है। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत का मत अधिक समचीनी प्रतीत होता है तथा इसमें अर्दित एवं पक्षाघात में अंतर स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अर्दित रोग की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के संक्रमण या अन्य कारणों से फेशियल नर्व की विकृति के कारण होती है। इसमें मुख का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है। इसे फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। परिभाषा के अनुसार देखें तो अर्दयति पीड़यति इति अर्दित अर्थात वह रोग जिसमें मुख के आधे भाग में टेढ़ापन व पीड़ा हो उसे अर्दित कहते हैं। अर्दित को मुखार्धघात भी कहा जाता है। ठीक है, अर्दित के लिए कहा गया है अतिवृद्ध शरीरम अर्धम एकम वायु प्रपद्यते। अगर हम इसके निदान की बात करें अर्दित के, तो अर्दित के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में अर्दित रोग में निम्न निदान जो है इसके बताए गए हैं। जैसे गर्भिणी और प्रसूता स्त्री, बालक, वृद्ध, क्षीण पुरुष में जो है अत्यधिक रक्त का क्षय होने के कारण, अत्यधिक उच्च स्वर में भाषण करने के कारण, अत्यधिक कठिन पदार्थों का भक्षण करने के कारण, या अधिक हंसना, जम्भाई लेना बार बार, अत्यधिक भार उठाना, विषम स्थान पर शयन करना, मुंह को टेढ़ा करके छींकना, वातकारक आहार विहार का सेवन करना। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में कहा है गर्भिणी, सूतिका, बाल, वृद्ध, क्षीणेषु ऐश्रक्षयो। ऐश्रक यहाँ रक्त के लिए है अर्थात जिनमें रक्त का क्षय हो जाता। उच्चैर व्याहरतो अति अर्थ है साधत कठिनानी च हसतो जम्बतो भाराद विषमाद छेदनाद अपि शिरो नाशा ओष्ठ चिबुक ललाटे अक्षण संदिग्ध है अर्दयति व अनिलो वक्त्रम अर्दितम जनयति यतः वक्रीभवति वक्तार्धम ग्रीवा च अपि प्रवर्तते। अर्थात जो है ये जो निदान है इनका सेवन करने की वजह से सिर, नाशा, ओष्ठ, चिपुक और ललाट जो है या फिर अक्षण संधि के नेत्र की संधियों में दोष जो है प्रकोपितवाद दोष अवस्थित होकर के वक्रीभवति वक्त्रार्धम, वक्र यानी टेढ़ा, मुखार्ध जो है उसको टेढ़ा कर देता है। मुखार्ध में वेदना की उत्पत्ति होती है और इसको ही अर्दित रोग कहा जाता है। इससे जो है अर्दित रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अर्दित के संप्राप्ति घटकों की बात करें तो यह दोष जो है इसमें वात प्रधान त्रिदोष कहा है, दुष्य रस रक्त मांस शिरा कहा है, अधिष्ठान या मुखार्ध है, स्रोतस जो है रक्तवय और रसवय स्रोतस, मांसवय और प्राणवय स्रोतस बताए हैं। स्रोतो दुष्टि प्रकाश संग और शिरा ग्रंथि है। अग्नि की स्थिति जो है विषमाग्नि। व्याधि का स्वभाव नवीन जो होती है वो मृदु होती है, जीर्ण जो व्याधि होती है वह दारुण होती है। यहाँ पे अगर हम साध्यता असाध्यता की बात करें तो नवीन साध्य होता है, जीर्ण जो है यह व्याप्य असाध्य होती है। अगर हम व्याधि के पूर्व रूप की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो है रोमहर्ष, विपथु, नेत्रम आविलम, वायुर्ऊर्ध्वम त्वचि, स्वापः स्तोदो मन्या अनुग्रह तम अर्दितम इति प्राहुर्व्याधिम व्याधि विशारदय। अर्थात रोमहर्ष, विपथु यानी कंपन ट्रिमर्स जो हैं, आविल नेत्रता यानी लिक्राइमेशन ऑफ आई और फुलनेस ऑफ आई विद टीयर्स, वायु का ऊर्ध्व वेग अर्थात डकार आना, इरेक्टेशन, त्वचा में शून्यता जो है लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्किन एंड नमनेस, तोद होना टिंगलिंग सेंसेशन, मन्या स्तंभ नेक रिजिडिटी, अनुस्तंभ लॉक जो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्दित जो है वृहत्रयी के अंदर भेदों के आधार पे जो है वैसे वृहत्रयी में इसका अलग से भेदों का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आचार्य भावमिश्र ने अर्दित के 3 भेद बताए हैं, वातज अर्दित, पित्तज अर्दित, कफज अर्दित। इन्होंने कहा है अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो ये कहते हैं मुख का टेढ़ा हो जाना यानी यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, नेत्र, ललाट, ओष्ठ, जिह्वा का एक तरफ वक्र हो जाना यानी ड्रूपिंग ऑफ मसल ऑफ आईज, फोरहेड, लिप्स एंड टंग ऑन द अफेक्टेड साइड, शिरह कम ट्रिमर ऑफ हेड, वाक संग एफोनिया, स्तब्ध नेत्रता यानी इमोबाइलाइजेशन ऑफ आईज, दंत चाल यानी फ्रिक्शन ऑफ टीथ, स्वर भंग यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस, श्रुति हानि यानी डीफनेस,
शवग्रह यानी छींक का रुक जाना, गंध का ज्ञान नहीं होना जाना, याददाश्त की कमी हो जाना, निद्रा में भय लगना, मुख के प्रभावित भाग से जो है निष्ठीव अन्न व जल का गिरना, गले के जो है ऊर्ध्व और अधोभाग के अंदर पीड़ा होना, ये सब जो चीज़ होती हैं यह इसके लक्षणों के अंदर है। और आचार्य वाग्भट ने जो है इसको कई जगह पे एकायाम जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम इसके भेदानुसार लक्षण देखें तो वातजर्दित के लिए कहा है मुख से अत्यधिक लालस्राव, व्यथा, कंप, अनुग्रह, वाक्ग्रह, ओष्ठ में शोथ और शूल का होना। इसी के अलावा जो है पित्तजर्दित के लिए है मुख का वर्ण पीताभ होना, ज्वर होना, पिपासा, मोह, उष्णता। कफजर्दित के संबंध में आया है गाल, सिर और मन्या में शोथ तथा स्तंभ। अगर हम यहाँ पे जो है सापेक्ष निदान की बात करें तो पक्षाघात और जिह्वा स्तंभ जो है इससे इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकता है। पक्षाघात में ऊपर से नीचे तक शरीर के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है, जबकि इसमें मुख के आधे भाग में चेष्टा का नाश होता है और यह फेशियल नर्व की विकृति की वजह से होता है। जिह्वा स्तंभ जो है, जिह्वा स्तंभ वाग्वाहिनी नाड़ी हाइपोग्लोसल नर्व की विकृति के कारण होता है, जबकि अर्दित जो है इसमें फेशियल नर्व की विकृति होती है। अगर हम इसके अंदर जो है साध्यता असाध्यता देखें तो जो क्षीण रोगी होगा, जिसके नेत्र न खुलते हों नहीं बंद होते हों, इस प्रकार का जो निरंतर जैसे अस्पष्ट जो है अस्पष्ट बोलने वाला रोगी हो, 3 वर्ष पुराना हो, जिस रोगी में कंप लक्षण हो, जिस रोगी में नेत्र नाशा मुख से निरंतर स्राव होता हो, इस प्रकार का जो रोगी होता है उसके अंदर यह असाध्य होता है। अगर हम इसकी चिकित्सा की तरफ देखें तो आचार्य चरक ने नस्य, मूर्धा पर तेल का अभ्यंग, संतर्पण आहार का सेवन, नाड़ी स्वेदन, आनुक जीवों के मांस का उपनह एवं आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जैसे कर्ण और नेत्र का तर्पण, शोफ होने पर वमन, दाह, लालिमा और शिरावेद जो है इन्होंने बताया 2 मिनट। इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करते हैं। थैंक यू। नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस about avvahuk. Avvahuk, we can correlate avvahuk with paralysis of the brachial plexus in modern science or in modern science aspect. First of all, we will talk that what is Nidana according to Ayurveda of avvahuk. अवबाहुक जो है इसको अलग अलग आयुर्वेद जो टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक जो शास्त्र है, इनके शास्त्रों में आयुर्वेद से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनके अंदर इसके अलग अलग प्रकार के जो है कारण बताए गए हैं, निदान बताए गए हैं। जैसे अवबाहुक जो है इसका उल्लेख जो है वात व्याधि के अंतर्गत आया है। मेन इसका जो अगर हम कारणों के अंदर माने तो वात दोष जो है वो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वात दोष वर्धक आहार विहार के सेवन की वजह से अवबाहुक जो है रोग की उत्पत्ति होती है। उसके अंदर जैसे अगर हम वातवर्धक आहार विहार कहें तो अगर हम वातवर्धक आहार देखें तो जिस प्रकार रूक्ष आहार का सेवन, शीत आहार का सेवन, अत्यल्प आहार सेवन या फिर असात्म्य आहार का सेवन या कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार का सेवन, विषम आहार सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन और अध्यसन, दारुण अर्थात अतिशीघ्र कुपित होकर दूषित करने वाला आहार, खर अर्थात कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार, विषमाशन, या फिर अगर हम निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है अत्यधिक रात्रि जागरण, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन जो है कष्टदायक शैया पर बैठना, अत्यधिक भाषण, अत्यधिक अध्ययन, अधिधावन, अभिघात, सुखपूर्वक न बैठना, क्रोध करना, दिवा स्वप्न, दिवाशयन, अति भार वहन, इस प्रकार जिस प्रकार अगर हम विशिष्ट निदानों की बात करें तो किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी प्रकार के जैसे रस रक्तादि दांतों का क्षय होना किसी भी कारण से, दोष धातु
का आवरण अथवा वात का मार्गावरोध होना, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आम्ररस की उत्पत्ति होना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग। इसी प्रकार जैसे अन्य निदान है, रक्त धातु का निर्हरण या फिर मर्म स्थानों पर आघात, पुरुष का क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में अस्वाभाविक जो है स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। दिन और रात्रि के तृतीय भाग में स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप होता है। अन्य के जीर्ण होने पर वात का प्रकोप। इस प्रकार के जो है वात दोष कारक जो आहार हैं एवं विहार हैं, या फिर जैसे गर्दन में आघात लगना, या फिर अंश संधि जो है उसका विश्लेष हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, या फिर जैसे अक्षकास्थि जो है क्लेविकल का भग्न हो जाना, या फिर ट्यूमर के कारण, या जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस में आघात होकर के पैरालिसिस उत्पन्न हो जाना, इन सभी निदानों के कारण जो है अवबाहुक रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम अवबाहुक के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर जैसे अंश संधि जो होती है, यानी कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ की सिराओं में संकोच होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, या फिर जिस प्रकार जो हस्त की चेष्टा का पूर्णतः नष्ट हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड इज कॉल्ड एज अवबाहुक, या बाहु में शोष हो जाना, एट्रोफी ऑफ मसल ऑफ आर्म। इसे जो है इस प्रकार के लक्षण जो है अवबाहुक रोग में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम इसके अंदर चिकित्सा की बात करें तो जैसे नस्य कर्म है, या फिर स्नेहपान है, या स्नेहपान के पश्चात भोजन का प्रयोग बताया गया है यहाँ पे, और जो है जैसे स्थानीय अभ्यंग और स्वेदन बताया गया है। विशेष रूप से अगर हम जैसे हमारे जो है आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने अष्टांग हृदय निदान स्थान के अंदर कहा है, अंशमूल स्थितो वायु शिरा संकोच्य तत्रगा बाहुर प्रस्पंदित हरम जनयति अवबाहुकम। अर्थात अंशमूल स्थितो वायु, ये जो निदान है वातवर्धक आहार विहार, इनका सेवन करने की वजह से अंशमूल में जो स्थित वायु होती है वो वहाँ के शिराओं का संकोच कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो चेष्टा होती है बाहु प्रस्पंदित हरम जनयति अवबाहुकम, वहाँ की जो चेष्टा होती है उसका नाश हो जाता है। यह जो कंडीशन होती है इसको अवबाहुक कहते हैं। इसी क्रम के अंदर आचार्य वाग्भट ने इसके चिकित्सा के लिए कहा है, अवबाहो हितम नश्य स्नेहश्च उत्तर भक्तिकम। ठीक है, यानी अवबाहुक का जो रोगी है, जिसको जो अवबाहुक से ग्रसित है, उसके लिए नस्य कर्म जो है वह हितकारी है। और यहाँ स्नेहपान के पश्चात इन्होंने भोजन का जो है विधान बताया है, इन्होंने स्नेहपान के पश्चात भोजन सेवन का के लिए कहा है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो है जैसे शास्त्रोक्त जो ये चिकित्सा उपक्रम यहाँ बताया है, इसी के अंदर उन्होंने कहा जैसे जो वात व्याधि कारक जो योग हैं, या फिर जो आसव अरिष्ट हैं, या जो चूर्ण रस भस्म वटियाँ ये हमारे यहाँ बताई गई हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वात गजांकुश, महावात गजांकुश रस, वतारी रस, वात विध्वंसन रस, रसराज रस, और जैसे चूर्ण हैं तो अश्वगंधा चूर्ण, या जो है एक पंचकोल चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, या फिर महारासनादिक्वात, रासना सप्तकवात, रासना दशमूलक्वात, माश बलादिक्वात, या फिर अगर हम तेल के प्रयोग करें तो जैसे रसोन तेल या बला तेल, अश्वगंधा तेल, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। बाह्य प्रयोगार जैसे प्रसारणी तेल है का प्रयोग कर सकते हैं, या पेशेंट को जो है महानारायण तेल, नारायण तेल, विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, इस प्रकार से जो है इसके अंदर चिकित्सा उपक्रम किए जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगर हम जैसे यहाँ पे घृत तेल की बात करें तो जैसे दशमूलाध्य घृत है, चित्रकाध्य घृत है, चतुस्नेह, और जो है गुग्गुल की बात करें तो जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और च्यवनप्राश, और इस प्रकार से जो है प्रयोग यहाँ पे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेदानुसार जो है अवबाहुक का
चिकित्सा किया जाता है। इसी प्रकार जो है पेशेंट को व्यायाम जो है एक्सरसाइज पेशेंट को करनी चाहिए स्पेसिफिक शोल्डर जॉइंट मूवमेंट के लिए, और पथ्य का पालन करना चाहिए। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by Digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विश्वाची। विश्वाची जो है यह वात व्याधि के अंतर्गत उल्लेखित व्याधि है। वात रोग का इसके अंदर, वात दोष का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसको वात व्याधि के अंतर्गत रखा गया है। अगर इसके लक्षणों के आधार पे मॉडर्न से इसका जो है आज के परिप्रेक्ष्य में इसका कोरिलेशन देखें तो रेडियो अल्नर न्यूराइटिस एवं रेडियो अल्नर पैरालिसिस के साथ में इसका कोरिलेशन किया गया है। सर्वप्रथम जो है वात व्याधि विश्वाची के लिए कहा गया है अष्टांग हृदय जो है, या फिर ये जो सुश्रुत ने आचार्य सुश्रुत ने कहा है वात व्याधि विश्वाची के लिए तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठते है बाहु कर्म क्षय करी विश्वाचीति हिम सा स्मृता। अर्थात आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि विश्वाची जो है एक तरह से हस्ततल जो है इसके जो अंतःभाग और इसकी कंडरा जो होती है उसके अंदर विकृति होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है बाहु कर्म जो हमारा बाहु होता है उसके प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है। डिफिकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है। ठीक है, हाथ की जो पेशियां होती हैं उनके अंदर क्षय होता है। इस प्रकार से विश्वाची जो है इसके लिए कहा गया है तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठते है बाहु कर्म क्षय करी विश्वाचिति ही सा स्मृता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे विश्वाची के निदान की बात करें तो जो भी वातवर्धक आहार विहार हमारे यहाँ बताए गए हैं, अर्थात जो वातवर्धक कारण है वो विश्वाची रोग की उत्पत्ति के अंदर सहायक होते हैं। जिस प्रकार की वात के प्रकोप के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि रूक्ष आहार, शीत आहार, अल्पाहार, असात्म्य आहार, हाथी घोड़ा ऊंट आदि की सवारी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग, अत्यधिक अध्ययन, अत्यधिक लेखन, अति धावन, अति उष्ण भाषण, और इसी प्रकार से जो जैसे अन्य जो हैं निदान अगर हम देखें तो एक जो है प्रॉपर शयन जो ना करना, ठीक है, सुखपूर्वक ना बैठना, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं जिनकी वजह से वात की वृद्धि होती है। नियमित भोजन ना करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, खर हैं, कठोर हैं, रुक्ष हैं, इस प्रकार के आहार का सेवन करना या अति अल्प मात्रा के अंदर आहार का सेवन करना। ठीक है, अत्यधिक जो है जैसे भारी वजन को उठाना और ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से हाथ में खिंचाव हो, हाथ से किसी भारी सामान को उठाना, तो इन कारणों की वजह से जो है विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है। आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर चेष्टा वह कार्य, अर्थात जो हाथ की मांसपेशियां हैं उनसे मोटर फंक्शन नहीं हो पाने की वजह से विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है। प्राय इसके अंदर रेडियल नर्व एवं अल्नर नर्व के पैरालिसिस के कारण हाथ का प्रसारण एवं आकुंचन नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर हम विचार करें तो ये विश्वाची रोग है, ये 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि प्रसारक पेशी कर्मशय अथवा बही प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विश्वाची जैसे रेडियल न्यूराइटिस और रेडियल पैरालिसिस,
या फिर जैसे आकुंचक पेशी कर्मशय अथवा अंतः प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विश्वाची, जैसे अल्नर न्यूराइटिस और अल्नर पैरालाइसिस। अब यहाँ क्या होता है कि जो है जैसे ये अल्नर न्यूराइटिस हो सकता है, रेडियल न्यूराइटिस हो सकता है, या उभय पेशी कर्मशय हो सकता है, अर्थात उभय नाड़ी विकृति जन्य जो है विश्वाची की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे रेडियो अल्नर न्यूराइटिस और रेडियो अल्नर पैरालाइसिस जो है उससे इसका कोरिलेशन किया जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ जो है विश्वाची के सामान्य लक्षणों की बात करें तो विश्वाची के अंतर्गत जो है जैसे हस्त, तल एवं अंतर्भाग में कंडरा के अंदर विकृति की उत्पत्ति होती है। जैसे डिफॉर्मिटी यहाँ पे होगी, डिफॉर्मिटी ऑफ इन द मसल ऑफ द मीडियल जो है पार्ट ऑफ आर्म, ठीक है। या फिर बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर जो है कठिनाई होती है, जैसे डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म। हाथ की पेशियों का क्षय होता है, जैसे वीकनेस इन द मसल ऑफ द आर्म। या यह रोग प्राय एक हाथ में होता है परंतु कभी कभी दोनों हाथों में भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम जो है इसके चिकित्सा की बात करें विश्वाची के अंतर्गत तो यहाँ पे स्थानीय अभ्यंग एवं स्वेदन का प्रयोग बताया गया है, यहाँ पे नस्य का प्रयोग बताया गया है और इस प्रकार से इसकी चिकित्सा बताई गई है, इसकी चिकित्सा का उल्लेख आया है। जैसे हम यहाँ पे जो वात व्याधि शामक जो योग बताए गए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे योगराज गुग्गुल या फिर वात गजांकुश गुग्गुल जो है इनका वात गजांकुश रस जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। या अगर इससे नहीं रोगी को लाभ मिलता है तो हम वात चिंतामणि रस या फिर वात विध्वंसन रस या फिर जो है वृहदवात चिंतामणि रस इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तक वात, रासना दशमूल क्वाथ, कोक्षुरादि जो है दशमूल क्वाथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट को जो अभ्यंग के लिए जैसे बला तेल का और रसोन तेल का प्रयोग कराया जा सकता है। या फिर जैसे बाह्य और अभ्यंतर जो है प्रयोगार्थ हम जैसे पेशेंट को जो है विषगर्भ तेल का, महाविषगर्भ तेल का जो है पेशेंट का अभ्यंगार्थ, बाह्य अभ्यंगार्थ प्रयोग कर सकते हैं। रोगी के लिए योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल इस प्रकार के गुग्गुल का प्रयोग करके या फिर शुद्ध कुपिलू का प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यंगार्थ सारणी तेल का यूज़ कर सकते हैं। स्वेदन के लिए दशमूल क्वाथ का यूज़ कर सकते हैं। रोगी को नस्य के लिए अणु तेल या महानारायण तेल का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार विश्वाची रोग की चिकित्सा की जाती है। यही है। I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.